Concept number 10. Concept number 10. So, meaning of proxy entity. Meaning of proxy entity. Proxy entity मतलब क्या होता है? What do you mean by proxy entity? So, a proxy entity mean such entity. A proxy entity mean such entity. A proxy entity means such entity which is similar to the given company. For example, for BPCL, SPCL may be considered as proxy entity. For BPCL, HPCL may be considered as proxy entity. Fine. कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. For PNB, Bank of Baroda, may be considered as proxy entity. Overall beta of proxy entity is calculated, which is considered to be same as given entity, which is considered to be same as given entity. Overall beta of proxy entity is calculated, which is considered to be same as given entity. Fine. कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. इसका मतलब क्या? मीन्स HPCL and BPCL OB will be same. Punjab National Bank and Bank of Baroda OB will be same. Fine. प्रॉक्सी एंटिटी, HPCL और BPCL आपस में प्रॉक्सी एंटिटी हैं. PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा आपस में प्रॉक्सी एंटिटी हैं.
फाइन, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 7 हम रीड करना शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा सवाल, और इस सवाल में लगभग सारे चैप्टर्स हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के यूज होंगे। ABC, a large business house, is planning to sell its wholly owned subsidiary B Limited. ABC B Limited सेल करना चाहता है। Another large business entity A Limited has expressed its interest in making a bid for B Limited. A Limited expects that after acquisition, the annual earning synergy of B Limited will increase by 10%. Following information, ignoring any potential synergetic benefit. Ignoring any synergetic benefits arising out of possible acquisition are available. Profit after tax for B Limited for the year which has just ended is estimated to be 10 crore. B Limited's after tax profit has an increasing growth rate of 7% each year, and the same is expected to continue. Estimated post-tax market return is 10%, risk rate is 4%. These rates are expected to continue. Corporate tax rate is 30%. Corporate tax rate is 30%. Fine. So, A Limited, ABC Limited और proxy entity for B Limited in the same line of business आपको दिया हुआ है. Assuming gearing level of B Limited to be same as that of ABC Limited and a debt beta of 0. Debt beta क्या माना है? 0. You are required to calculate appropriate cost of equity. आपको cost of equity निकालना है for B Limited based on the data available for proxy entity. ठीक है. A range of values for B Limited both for before and after and any potential synergetic benefit to A Limited of the acquisition based on the P ratio and dividend growth model using proxy as well as A Limited data wherever applicable. Question B part में भी framed in the following manner. Simple ये भी लिखा जा सकता है. Range of values निकालो for KLM before and after any synergetic benefit to XYZ एक्विजिशन. यहाँ पर आपको मॉडल का इंडिकेशन है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल और पी रेशियो मॉडल. यहाँ पर आपको बिना किसी बात से भी पूछा जा सकता है. हमें अपने आप अंदाजा लगाना पड़ेगा क्योंकि पी रेशियो आप देख सकते हैं दिया हुआ है. अगर वैल्यूएशन पूछा है, अगर वैल्यू पूछा है तो पी रेशियो दिया हुआ है, और आपको ग्रोथ मॉडल का भी ऑलमोस्ट सारा डाटा दिया हुआ है. ठीक है, बहुत सारा बात यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है. एक एक करके समझते हैं. रेंज ऑफ वैल्यूज पूछा है, वैल्यूज निकालना है, बिफोर एंड आफ्टर सिनर्जी निकालना है, एक्स वाई जेड का निकालना है. फाइन. ठीक है. क्वेश्चन को हमने रीड किया, आप चाहे तो एक बार और रीड करें. क्वेश्चन नंबर 7. तो सबसे पहले अगर मैं हिंट में देखना चाहूं इस क्वेश्चन को, तो एबीसी तो एक होल्डिंग कंपनी है, तो इसकी तो बात ही मत कीजिए. ये एक होल्डिंग कंपनी है और ये एक सब्सिडियरी कंपनी है. ये एक सब्सिडियरी कंपनी है. फाइन. और सब्सिडियरी कंपनी बी लिमिटेड है. सारा खेल बी लिमिटेड के लिए करना है. ये एक टारगेट कंपनी है. ये एक टारगेट कंपनी से खरीदना चाह रहा है. कौन? ए लिमिटेड, जो कि है बायर, जो कि है बायर. फाइन.
कोई दिक्कत नहीं है। नो प्रॉब्लम एट ऑल। और यहां पर एक प्रॉक्सी एंटिटी भी दिया हुआ है, प्रॉक्सी एंटिटी भी दिया हुआ है, तो वो एक सिमिलर एंटिटी है बी लिमिटेड के, ऑफ बी लिमिटेड डेफिनेटली, उसका भी आपको डाटा दिया हुआ है। तो अगर मैं इसे मानूं वोडाफोन आइडिया, इसे मैं मानूं लेट से आदित्य बिरला ग्रुप एंड वोडाफोन बहुत बड़ा ग्रुप है, वोडाफोन ग्रुप, और ये आपका मान लीजिए एयरटेल है प्रॉक्सी एंटिटी, और ये मान लीजिए आपका स्टारलिंक कंपनी है जो कि एलन मस्क की है, एलन मस्क। ठीक है, ये जस्ट मैंने अपने तरफ से एग्जांपल दिया आपको। नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमें वोडाफोन आइडिया की वैल्यू निकालनी है, हमें वोडाफोन आइडिया की वैल्यू निकालनी है। ये टारगेट कंपनी है, ये बायर है। सो बहुत सारा डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। आइए सो अब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले पूछा गया है केई ऑफ बी लिमिटेड। केई क्या होता है? आरएफ। केई क्या होता है? आरएफ प्लस बीटा इक्विटी आरएफ कितना दिया हुआ है? 4%। बीटा इक्विटी की बात अभी करेंगे। सो बीटा इक्विटी किसका लेना? प्रॉक्सी एंटिटी का। प्रॉक्सी एंटिटी का लेना है हम लोग को, यहां पर हेल्प लेना है। सो अगर हम 1.1 लेते हैं प्रॉक्सी एंटिटी का तो सही है, लेकिन सिंस 1.1 इक्विटी बीटा 1.1 इक्विटी बीटा is when gearing is 1:4, when gearing is 1:4, but as per question we have to, but as per question we have to keep gearing at 1:3. Fine.
क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिंस क्वेश्चन स्टेटेड दैट B limited gearing will be same as that of ABC. फाइन. सो प्रॉक्सी एंटिटी तो ले सकते थे, लेकिन ये हमने नहीं लिया, क्रॉस लगा दिया. सिंस 1.1 इक्विटी बीटा is when gearing is 1.1:4. But as per question, we have to keep gearing at 1:3, since question stated that B limited gearing will be same as that of A limited. तो यहाँ पर अब हम लोग को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. वर्किंग नोट यहाँ बनाना पड़ेगा. सबसे पहले हम ओवरऑल बीटा ऑफ प्रॉक्सी एंटिटी निकालते हैं. सबसे पहले हम ओवरऑल बीटा ऑफ प्रॉक्सी एंटिटी निकालते हैं. आइए वर्किंग नोट की ओर बढ़ते हैं. सबसे पहला स्टेप 1 क्या है? फर्स्ट कैलकुलेट ओवरऑल बीटा ऑफ प्रॉक्सी एंटिटी. फर्स्ट कैलकुलेट ओवरऑल बीटा ऑफ प्रॉक्सी एंटिटी. पहले आप प्रॉक्सी एंटिटी का ओवरऑल बीटा निकाल लीजिए. फाइन. दिस इक्वल्स टू क्या होगा? 1:4. डेट इक्विटी 4 इक्विटी है, 1 इसका मतलब डेट है. फाइन. डेट बीटा को 0 मानने बोला है क्वेश्चन में, गिवन इन क्वेश्चन. इंटू 1 तो ये कितना आया? 4.7 इंटू 1.1 डायरेक्ट आ गया 936 टाइम्स 0.963 टाइम्स. फाइन, कोई दिक्कत नहीं है. फिर स्टेप 2, now calculate equity beta of B limited at 1:3 gearing. अब हम लोग B लिमिटेड का इक्विटी बीटा निकालेंगे.
और बीटा तो सेम रहेगा, इक्विटी बीटा 3 प्लस 1 माइनस टैक्स प्लस 0 EV is equals to 3 divided by 3.7 डायरेक्ट लिख रहे हैं 0.8108 तो ये आपका आ रहा 1.1544 टाइम्स फाइन। अब इसे पुट कर लेंगे, अब इसे वहां पुट कर लेंगे के केस में। तो फर्स्ट पार्ट वाज वेरी वेरी सिंपल, सो ये आएगा आपका 1.1544। दिस इक्वल्स टू फाइनल आंसर कितना आया 10.9264%। 10.9264%। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10.9264। फाइन, सो फर्स्ट पार्ट वाज वेरी वेरी सिंपल। अब हम सेकंड पॉइंट आते हैं, रेंज ऑफ वैल्यूएशन पूछा है, रेंज ऑफ वैल्यूएशन पूछा है। रेंज ऑफ वैल्यूएशन आपको पूछा है, पी रेशियो वैल्यूएशन मांगा है और डिविडेंड ग्रोथ वैल्यूएशन मॉडल मांगा है, ठीक है। रेंज ऑफ वैल्यूएशन हेडिंग देंगे, हेडिंग देंगे पॉइंट नंबर सेकंड, आपसे रेंज ऑफ वैल्यूएशन मांगा है, रेंज ऑफ वैल्यूएशन। सबसे पहले आप पी रेशियो से वैल्यूएशन मॉडल निकालिए। पी रेशियो वैल्यूएशन, पी रेशियो वैल्यूएशन क्या होता है? पी रेशियो वैल्यूएशन, सो पी रेशियो आपको दिया हुआ यूजिंग प्रॉक्सी एंटिटी का तो लेंगे ही लेंगे, एंटिटीज पी which is 12 using proxy entities P which is 12।
फाइन, बिफोर सिनर्जी 10% सिनर्जी थी, क्या होता है पी रेशो, क्या होता है अर्निंग इनटू पी रेशो, तो वैल्यू आ जाएगा ना। हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, हमें वैल्यू निकालना है। बी लिमिटेड के लिए काम कर रहे हैं, बी लिमिटेड की अर्निंग क्या है 10 करोड़ और पी रेशो कितना है, तो ये 120 करोड़ आ गया। अर्निंग आप देखिए कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 करोड़ का अभी अभी कंपनी बी लिमिटेड ने ईयर जस्ट एंडेड 10 करोड़ कमाया है, तो 10 करोड़ हो गया। लेकिन अगर सिनर्जी ले लिया जाए तो सिनर्जी 10% की है, तो सिनर्जी 10% की है इंटू 12, तो ये हो जाएगा 132 करोड़, ये हो जाएगा आपका 132 करोड़। फाइन, एक पी और दिया हुआ है, वैसे तो 3 दिए हुए, लेकिन आपको एक पी आपको और यूज करना चाहिए, और वो है आपका ए लिमिटेड का पी, क्योंकि ए लिमिटेड आपको खरीद रहा है, ए लिमिटेड आपको खरीद रहा है यूजिंग ए लिमिटेड पी which is 10, A limited P which is 10। फाइन, तो यहां भी वही कहानी, बिफोर सिनर्जी 10 करोड़ इंटू 10 100 करोड़, टेन करोड़, तो ये कितना आ रहा है 110 करोड़। 110 करोड़, फाइन। अब डिविडेंड ग्रोथ वैल्यूएशन मॉडल देखते हैं, डिविडेंड ग्रोथ वैल्यूएशन मॉडल देखते हैं। डिविडेंड ग्रोथ वैल्यूएशन मॉडल, आइए अब करते हैं नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल था ये पार्ट, तो अब करते हैं डिविडेंड ग्रोथ वैल्यूएशन मॉडल करते हैं। डिविडेंड ग्रोथ वैल्यूएशन मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ वैल्यूएशन मॉडल करते हैं। फाइन, यूजिंग proxy entity dividend payout which is 50%, using proxy entity dividend payout which is 50%,
यहां पर भी दो चीजें, बिफोर सिनर्जी, यहां भी दो चीजें, बिफोर सिनर्जी, बिफोर सिनर्जी। डिविडेंड ग्रोथ वैल्यूएशन मॉडल क्या होता है? ये होता है डिविडेंड 1 और डिविडेंड 0, 1 प्लस जी क्या होता है? डिविडेंड 1 के माइनस जी, के माइनस जी, डिविडेंड 0 क्या होता है? अर्निंग 0 इंटू पे आउट रेशियो, अर्निंग 0 इंटू पे आउट रेशियो। अर्निंग क्या है? अर्निंग आपका 10 करोड़ इंटू पे आउट रेशियो है, ग्रोथ आपका 7% दिया हुआ है, के ही आपने 10.93 निकाला है और 7% और 7%। तो आपका यहां पे वैल्यूएशन कितना आया? 136.13 करोड़, 136.13 करोड़। फाइन। फाइन। आफ्टर सिनर्जी में 10% सिनर्जी ऐड कीजिए, तो 10 करोड़ में 10% ऐड होगा और 50% पे आउट है। 7% डिवाइडेड बाई 0.07। फटाफट देखें। फाइन। 10% सिनर्जी है, उसका 50% आप दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आ रहा है? फटाफट कैलकुलेट करके बताएं। तो ये आपका आ रहा है 149.75 करोड़। तो ये मैंने प्रॉक्सी एंटिटी का यूज किया। अब हम यही क्या करेंगे? ए लिमिटेड का डिविडेंड पे आउट रेशियो यूज करेंगे। ए लिमिटेड जो बायर है, जो उसे खरीद रहा है, वही अब इस कंपनी को चलाएगा, तो उनकी बात तो सुननी पड़ेगी। फाइन। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए, सो यहां पर वाई अर्निंग 0, वाई अर्निंग 0, अर्निंग 0 क्यों हुआ? सिंस 10 करोड़ अर्निंग is for year just ended as given in question. As
stated in question, since 10 crore is for year just ended, 10 crore earning is for year just ended as stated in question. ठीक है, फाइन. इसलिए हमने अर्निंग जीरो लिया और अर्निंग जीरो से डिविडेंड जीरो आया एंड देन अकॉर्डिंगली आपके सामने सारा चीज. फाइन. अब यूजिंग, बट एक बार चीज समझ में आ गई तो सब इजी है एकदम. विच इज 40%, 50% की जगह 40% हो जाएगा. बिफोर सिनर्जी वैल्यू 10 करोड़, 40%, 0.07, 0.07. आफ्टर सिनर्जी. आराम से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन देखिए, मैं वेट कर रहा हूं. टेन करोड़, 10% सिनर्जी है, 40% दे रहे हैं, ग्रोथ 7% की है, 0.1093, 0.07. हर एक चीज का नॉलेज होना कितना जरूरी है ये पता चल गया है आपको इस क्वेश्चन से. कितना सारा कॉन्सेप्ट है, कितना सारा कॉन्सेप्ट है, बट कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है. आराम से देखिए, मैं वेट कर रहा हूं यहां पर. इसका आंसर बताइए फटाफट. 108.906 करोड़ और इसका आंसर क्या है? 119 पॉइंट. बस एक ही चीज तो बदला है, करोड़. फटाफट आप देखिए. ठीक है, सारा देख लिया आपने. अब हमें एक फॉर्मेट में रेंज ऑफ वैल्यूएशन निकालना है. रेंज ऑफ वैल्यूएशन निकालना है. रेंज ऑफ वैल्यूएशन. सो मिनिमम, मैक्सिमम.
मिनिमम मैक्सिमम बिफोर सिनर्जी आफ्टर सिनर्जी। बताइए सबसे कम वैल्यू कहां पर आ रही है आप देखिए, और सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पर आ रही है आप देखिए। रेंज ऑफ वैल्यूएशन, आपको क्वेश्चन बोला रेंज ऑफ वैल्यूएशन, सबसे कम वैल्यू कहां आ रही है देखिए, और सबसे ज्यादा वैल्यू कहां आ रही है वो देखिए। रेंज ऑफ वैल्यूएशन पूछा है, रेंज ऑफ वैल्यूएशन। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन यहां पर आपको देखने को मिला है। रेंज ऑफ वैल्यूएशन, रेंज ऑफ वैल्यूएशन, फाइन। सो आराम से देखिए, आराम से देखिए। एक बार हम क्वेश्चन फिर से रीड करेंगे, आराम से एक एक चीज पढ़िए, एक बार घर जाके जरूर इसको करना। मस्ट 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 रिवाइज बिफोर एग्जाम। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करना ही है। अच्छा सवाल है ये। ठीक है ना, ये ऐसे सवाल है कि कहीं ना कहीं आप भूल सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं, बहुत सारे यहाँ पर चीजें हैं जो आप हो सकता है आपके दिमाग से हट जाए, इसलिए एग्जाम से पहले आपको जरूर रिवाइज करना है। फाइन, चले आगे, एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है कि अर्निंग सिनर्जी 10% होगी, तो 10% हमने लिया। ठीक है, यहां बोला हुआ है 10 करोड़ की हमारी अभी प्रॉफिट जस्ट एंडेड, जस्ट एंडेड मतलब अभी की बात बोल रहा है। 10 करोड़ है, 7% ग्रोथ रेट है, 10% आपका मार्केट रिटर्न है, रिस्क फ्री 4% है, कॉर्पोरेट टैक्स 30% है। ठीक है, सो ए लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड जो होल्डिंग कंपनी थी, ए लिमिटेड जो उसे खरीदना चाहता है, ये प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी का तो हमें डाटा लेना ही है, पी रेशियो प्रॉक्सी का लेना है, इक्विटी बीटा भी प्रॉक्सी का लेके ओवरऑल बीटा निकालना है, देन फिर उस ओवरऑल बीटा को रखकर हम इक्विटी बीटा निकालेंगे अपनी गियरिंग पे, और डिविडेंड पे आउट रेशियो भी इसका लेना है, प्रॉक्सी का तो लेना है, प्लस और किसका लेना है, गियरिंग आपको क्या बोला है, एबीसी का बोला है, तो गियरिंग एबीसी का रख दिए। बाकी ए लिमिटेड भी इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएशन में ए लिमिटेड का भी काम आएगा, क्योंकि ए लिमिटेड बी लिमिटेड को एक्वायर करना चाहता है। फाइन सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो
यहां पर आपसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछा है, हमने निकाल दिया। रेंज ऑफ वैल्यूज पूछा है, बिफोर एंड आफ्टर सिनर्जी आपको या तो बोल दिया जाएगा कि भैया कौन सा मॉडल लगाना है, लेकिन अगर आपको साइलेंट है तब भी आपको पी रेशियो और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल निकालना है। या तो बोल दिया जाएगा किस किस का डाटा यूज करना, नहीं बोला तो प्रॉक्सी का तो यूज करना ही है, ए लिमिटेड का भी यूज करना है। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सर।